Good morning, students. Now we will understand how we can give very specific answer in the Viva or internal or in the your career, that is the placement. Many students are very much new for this type of the event. They always try to understand this is the first expression and you have to say very specific to the your answer, because this always give you credit in your career. So let's start with some fundamental question. The first question: the difference between operators and operands. So let these two important word. One is the operator and second is the operands. So is any difference between these two? The answer is very much clear, yes. So how and what differences? The first, then operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical manipulations. है ना? ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर एक सिंबल है जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामिंग में एक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस को करने के लिए. जैसे आपके पास प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, अगर ये प्लस दो नंबर के बीच में आएगा तो इट विल बी द यूर एडिशन ऑफ दैट. अगर माइनस का सिंबल आता है दो टू और टू के बीच में तो द रिजल्ट विल बी द ऑटोमेटिकली जीरो. मीन्स व्हाट? दिस इज द यूर ऑपरेटर. ओके, now the operands are what? Operands nothing but this is the data item that operator used to called operand. जैसे मैंने बोला 2 + 2, तो 2 + 2 यहाँ पे ऑपरेंड हो गया क्योंकि उनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है. और प्लस क्या है? इट इज ए ऑपरेटर जो इस ऑपरेंड को मैनिपुलेट कर रहा है. तो दिस इज द वर्डिंग कि ऑपरेंड जिनके ऊपर ऑपरेशन होना है और ऑपरेटर जिनके द्वारा ऑपरेशन होना है. तो लेट दिस इज क्लियर. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द सेकंड, डिफाइन द टर्म एक्सप्रेशन. देखिए कोई भी प्रोग्राम बिना एक्सप्रेशन के नहीं बन सकता है. तो व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? An expression is nothing but a formula in which operands are linked to each other by use of operator to compute a value. मतलब एक्सप्रेशन के अंदर कौन रहेगा? ऑपरेटर रहेगा और ऑपरेंड रहेंगे. जब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम अपने प्रोग्रामिंग में जब लिखते हैं तो हमें एग्जैक्टली उसका ऑपरेशन के बाद वैल्यू रिजल्ट मिलेगा. तो हियर एन ऑपरेंड कैन बी ए फंक्शन. एक फंक्शन भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक एरे भी हो सकता है और एक सिंपली कांस्टेंट भी हो सकता है. ठीक है. तो हियर यूर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज ए अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, देन रिलेशनल एक्सप्रेशन, देन द लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड द कंडीशनल एक्सप्रेशन. तो इस तरीके से we have to understand the term expression. Now the next. Now let we have a one expression a plus b is equal to 2. So what basically sense of this a plus b minus 2? So in this expression variables are a and b. Operators are plus and 2 and the only one constant that is the 2. ठीक है. तो बेसिकली वी कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली. दिस इज बाय द printf. हम इसे printf में भी डायरेक्टली लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लेट आई हैव ए printf and I will write here %d
because the result I should get the integer. तो I can write like this. तो this is my expression. मैं इसको एक्सप्रेशन ही बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये रन हो सकता है. यानी सपोज ए की वैल्यू लेट आई हैव 10 एंड द बी की वैल्यू लेट आई हैव 20. ठीक है ना. दिस इज द कंसेप्ट. ए इज इक्वल टू 10 है, बी इज इक्वल टू 20 है. तो यहाँ पर ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 आ जाएगी. तो इट विल बी द यूर 30 एंड 30 माइनस 2 इज द 28. तो वी शुड गेट ए 28. So this is the concept कि how we are using this type of the concept. Or we can also use this as a intermediary result. For example, let I am using the one C है ना. C is equal to this concept. मैं अगर इसको इस तरीके से यूज कर रहा हूँ कि let I have a C is equal to a plus b minus 2. तो this C actually have a result of this a and b minus 2. तो let I have a है ना. a is equal to 10 and the b is equal to 20 like a previous concept. तो here I have a two value 10 है और 20 है. तो I can use C is equal to 10 plus 20 and minus 2 and C, and later on I will use the printf like a for the printing this C. So this is the actually your expression कि how this expression is working. Okay, so I think it is clear. Now the unary operator, actually our operator can be classified according to their nature or according to their ऑपरेंट्स कि हर ऑपरेटर के साथ कितने ऑपरेंट लग रहे हैं और क्या उसका नेचर क्या है. ठीक है ना. तो जैसे एक नेचर होता है अर्थमेटिक नेचर होता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन का नेचर होता है, लॉजिकल का एक नेचर होता है. उसी प्रकार से नंबर ऑफ ऑपरेंट के ऊपर भी हम क्लासिफाई करते हैं ऑपरेटर को. तो सबसे पहले जैसे यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर का वर्ड ही मतलब है कि this is a require only one operand and they perform various operations such as incrementing, decrementing, negative and the inverting the value in a boolean. So this is a actually such type of the unary operators available in the our C language. तो प्लस का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ प्लस ए है ना. तो प्लस ए का मतलब दिस इज ए नेगेटिव, दिस इज ए पॉजिटिव नंबर. तो ये यूनरी हो गया. क्यों? क्योंकि एक ऑपरेटर है और एक ऑपरेंड है. तो लाइकवाइज यू कैन आल्सो यूज द यूनरी नेगेटिव. नेगेटिव में मतलब क्या होगा, यू आर निगेट द कंसेप्ट. लेट आई हैव 10 एज ए पॉजिटिव नंबर. नाउ आई एम यूजिंग ए इज इक्वल टू माइनस ए. तो हियर व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने ए को क्या कर रहे हैं, -10 बना रहे हैं, निगेट कर रहे हैं, नेगेशन कर रहे हैं. तो दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ द यूर नेगेटिव कंसेप्ट. नाउ इंक्रीमेंट, ये तो बहुत पॉपुलर है कि लेट आई हैव ए इज इक्वल टू 10 एंड आई एम गोइंग फॉर द ए प्लस प्लस. तो व्हाट विल हैपन, दिस ए प्लस प्लस बिकम ए इंक्रीमेंट है ना. यू कैन ऑल्सो यूज द प्रीफिक्स. ये पोस्ट फिक्स है आपका. यू कैन ऑल्सो यूज द प्रीफिक्स कंसेप्ट. तो प्रीफिक्स में यू कैन यूज लाइक ए प्लस प्लस ए. So this is about the your prefix increment, postfix increment, prefix increment and likewise negative. नेगेटिव में डिक्रीमेंट हो सकता है. डिक्रीमेंट मतलब एक वैल्यू कम होना चाहिए. तो लेट आई हैव ए इज इक्वल टू 10, देन आई विल गो फॉर द ए माइनस माइनस और यू कैन यूज द माइनस ए. तो व्हाट इज द एक्चुअली सेंस ऑफ दिस, दिस इज नोन एज ए यूर postfix increment and this is a prefix increment. Okay, so let I have such type of characteristics of the our unary operator. We can also go for the your complements concept. So you can invert. This is the value in the different. So this is known as a your what explanation. That is the logical complement operator. Okay, so this is about the your unary operator. Now what the second is the your binary operator. तो by name binary you have a one operator but the two operator. यहाँ पर देखो ऑपरेंड की बात हो रही है, ऑपरेंड कितने होंगे उस पर ही ये नेचर बन सकता है. तो इट इज ए बाइनरी ऑपरेटर. ओके, तो हियर बाइनरी ऑपरेटर एक्ट अपॉन ए टू ऑपरेंड टू प्रोड्यूस व्हाट, ए न्यू वैल्यू. ठीक है. तो दो एक नई वैल्यू कब मिलेगी, जब आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, दो वैल्यू का ऑपरेंड होगा. ठीक है.
तो लेट आई हैव दिस 5 मिनिमम ऑपरेटर एज ए यूर बाइनरी प्लस को मैं यूज कर सकता हूँ. लेट आई हैव ए इज इक्वल टू 23, बी इज इक्वल टू 10. देन आई विल गो फॉर द ए प्लस बी. तो यहाँ 33 हो जाएगा. माइनस है तो माइनस के साथ जाएंगे तो आपका 13 हो जाएगा. लाइकवाइज मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड व्हाट वी हैव मॉडुलस. मॉडुलस में क्या होता है, हमें रिमाइंडर मिलता है. तो लेट ए इज इक्वल टू 23 एंड बी इज इक्वल टू 10. यू हैव टू डिवाइड. तो जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको मिलेगा, है ना. एक कोशेंट मिलता है, एक रिमाइंडर मिलता है. तो कोशेंट का मतलब तो ये ऊपर डिवीजन हो जाता है. रिमाइंडर का मतलब हो जाता है मॉडुलर का मतलब होता है रिमाइंडर. तो हियर यू विल गेट ए 3. ठीक है. तो लाइकवाइज जैसे यहाँ का कोशेंट कितना होगा, कोशेंट हो जाएगा 2, बट द रिमाइंडर कितना होगा, दैट विल बी 3. तो दिस इज अबाउट द बाइनरी ऑपरेटर. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज द टर्नरी ऑपरेटर. देखिए टर्नरी ऑपरेटर में क्या होगा, 3 ऑपरेंड आएंगे. तो 3 ऑपरेंड कैसे आएंगे, द फर्स्ट ऑपरेंड फॉर द कंपेरिजन आर्गुमेंट, तो कंपेयर करेंगे. सेकेंड आर्गुमेंट आफ्टर द रिजल्ट, है ना. फर्स्ट रिजल्ट जो ट्रू रिजल्ट होगा वो कंपेरिजन के बाद उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे. और थर्ड क्या होगा, दैट विल बी द यूर फॉल्स रिजल्ट होगा. तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि लेट आई हैव ए दिस एक्सप्रेशन वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1, देन दिस इज द यूर, है ना. टर्नरी ऑपरेटर का हमारा एग्जांपल क्या होगा, टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल होगा क्वेश्चन मार्क एंड व्हाट, कोलोन. दिस इज द सिंबल क्वेश्चन मार्क विद द this one. This is known as a your what, your colon. Okay. So in this expression we can say कि this is variable is there, expression is there, and this expression is nothing but the your condition. तो इफ दिस एक्सप्रेशन विल ट्रू, है ना, गिव द ट्रू रिजल्ट, तो ये आपको एक्सप्रेशन 2 को वेरिएबल 1 में सेव कर देगा. और अगर आपके पास एक्सप्रेशन 3 सही होगा तो ये वेरिएबल में सेव कर सकता है. तो व्हेन एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू, तो दिस एक्सप्रेशन 2 विल बी मूव टू वेरिएबल 1. और एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 3 रिजल्ट विल मूव टू दिस वेरिएबल. तो दिस इज अबाउट द आवर टर्नरी ऑपरेटर. Now the next question, अर्थमेटिक ऑपरेटर, एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर. तो अर्थमेटिक ऑपरेटर को भी आप वही बाइनरी ऑपरेटर के कंसेप्ट में बात करेंगे. तो दिस इज वेरी सिमिलर टू द यूर बाइनरी ऑपरेटर एंड द सेम यू कैन से द प्लस फॉर द एडिशन, माइनस फॉर द सब्ट्रैक्शन, देन स्टार फॉर द मल्टीप्लिकेशन, स्लैश फॉर द डिवीजन एंड द यूर परसेंटेज फॉर द रिमाइंडर और द मॉडुलस. Now, example of your relational operator. The relational operator actually what? A relational operator checks the relationship between the two operand. है ना, इन दोनों के बीच रिलेशन यानी बड़ा है, छोटा है, बराबर है, like that concept. If the relation is true, then it return 1. If relation is false, it return value 0. तो दिस इज द एक्चुअली एग्जीक्यूशन ऑफ यूर रिलेशनल ऑपरेटर. तो रिलेशनल ऑपरेटर एक्चुअली यूज्ड फॉर व्हाट, इन द डिसीजन हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट में से यूज करते हैं और लूपिंग में हम इसे यूज करते हैं. क्यों, क्योंकि हमें इसमें कंडीशन चेक करना पड़ता है. तो कौन कौन से सिंबल्स हो सकते हैं, एंड सिंबल फॉर द एंड, देन द दिस वन इज नोन एज, अच्छा ये आपका बीट वाइज का कंसेप्ट आ जाएगा. इट इज ए बीट वाइज ऑपरेटर. Okay. This is the bitwise operator. So this is the example of not a relational operator. I will say it is a bitwise concept, है ना. It is a bitwise operator. तो bitwise operator ये होगा. relational operator कौन से होंगे, relational operator are like very similar to this operator. तो relational operator होंगे आपके lesser sign, then the greater sign, then lesser equal to, then greater equal to, then equal, है ना, इक्वल एंड द वन इज द नॉट इक्वल. तो इसको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर. ठीक है ना. इट इज दिस आर द रिलेशनल ऑपरेटर. तो रिलेशनल ऑपरेटर को वी विल यूज फॉर द मेकिंग ब्रांचिंग, है ना. ये आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है तो उसे हम इफ में यूज करते हैं, और लूप में हमें यूज करना है तो भी हम सी यूज करते हैं. जैसे हमने फॉर लूप बनाया तो फॉर इज व्हाट, फॉर आई इज इक्वल टू 1 एंड आई लेसर देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस. तो दिस इज द एक्चुअली आई लेसर देन 10 का मतलब है कि आई जब तक छोटा है या बड़ा है 10 तक, तब तक ये लूप चलेगा, है ना. दिस इज द कंसेप्ट. जैसे इफ में हम कैसे बनाते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 10. इसका मतलब क्या हो गया कि हम जब कंडीशन ये सही होगा तो देन वी विल थिंक अबाउट द यूर ट्रू कोड.
Now the another operator in the C is the bitwise operator. Bitwise यानी कि you know very well the actually every byte is a consist of the bit, है ना. एक bit यानी 1 या फिर 0, दो सिंबल होंगे in which you have to use the this symbol for the your bitwise. तो bitwise में हमको ये देखना है कि this will be the your AND. वन सिंगल AND लेंगे तो bitwise AND होगा, वन सिंगल वर्टिकल बार लेंगे तो और होगा, देन आपका कैरेट लेंगे तो ये एक्सक्लूसिव और हो जाएगा, देन टिल्डे लेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, शिफ्ट लेफ्ट हो जाएगा, दो हम एंगल ब्रैकेट लेंगे और शिफ्ट राइट लेंगे तो दिस इज द यूर राइट एंगल में आपका बन सकता है. तो दिस अबाउट द यूर बिटवाइज ऑपरेटर एंड दिस इज अबाउट द यूर रिलेशनल ऑपरेटर. ओके, ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर. देखिए, देर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर इन द सी लैंग्वेज. वन इज द लॉजिकल एंड, यहाँ पर 2 एंड लगाएंगे, लॉजिकल और यहाँ पर 2 वर्टिकल बार लगाएंगे, लॉजिकल नॉट, है ना, दिस इज लॉजिकल नॉट. तो लॉजिकल नॉट क्या है हमारे पास में, एक्सप्लेनेशन मार्क. जैसे फॉर एग्जाम्पल x ग्रेटर देन 5 एंड y ग्रेटर देन 5. इसका मतलब ये है कि जब ये एक आपका ऑपरेंड सही होगा और दूसरा ऑपरेंड भी सही होगा तो व्हेन दिस रिजल्ट विल बी ट्रू, है ना. रिजल्ट आपका ट्रू कब होगा, जब आपके दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तब जाके ये रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना. बिकॉज द कंसेप्ट इज द एंड. एंड का मतलब यही हो रहा है कि व्हाट इज मीन बाय एंड. एंड इज द एक्चुअली टू इनपुट, अगर दोनों सही होंगे तो ही आंसर मिलेगा. नाउ व्हाट अबाउट दिस और में क्या होगा कि ये आपका ट्रू होगा, this will be the your true, but this true when this will be the become result true जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आंसर आपका ट्रू होगा. एनी वन कंडीशन, दोनों भी हो सकती है, एनी वन कंडीशन और बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन हो सकती है ट्रू के लिए, ठीक है ना. नाउ लास्टली इज व्हाट, यूर नॉट. जब ये पूरे का पूरा रॉन्ग होगा यानी कि इट विल बी गिव ए फॉल्स. जब ये दोनों के दोनों ट्रू होंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमें रिजल्ट मिलेगा फॉल्स. तो दिस इज द एक्चुअली यूर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉजिकल व्हाट, यूर लॉजिकल क्या बोलेंगे इसको, दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू, है ना, इज लाइक दिस. तो इसको इस तरीके से हम समझते जाएंगे तो बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं अपने वाइवा में. देखिए, वाइवा एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है. अब देखिए, बहुत सटीक आंसर देना है आपको. लेट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ऑपरेटर, है ना. तो डबल एंड है और एंड है. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो दिस इज अ बिटवाइज ऑपरेटर, कंपेयर ईच ऑपरेंड बिटवाइज, एंड दिस इज द बाइनरी एंड ऑपरेटर एंड इट विल बी द कॉपी से बीट ऑफ रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन द बोथ ऑपरेंड, ठीक है. अगर आपके पास 0 और 0 है, जैसे 7 और 7 का कंसेप्ट है, 7 का मतलब क्या होता है, 1 1 1, इट इज 7, और 0 क्या होगा, 0 0 0. अब इसका हम एंड करेंगे, है ना, इसका एंड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, अगर 1 है 0 है तो यू शुड गेट व्हाट, 0, और 1 और 0 है तो यू विल गेट 0. तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 0 0 0, है ना. दिस विल बी द एंड बिटवीन द यूर 1 एंड 7. तो 1 और 7 के बीच में मैंने एंड कर दिया तो ये आपका एंडिंग हो गया. नाउ व्हाट अबाउट दिस लॉजिकल एंड. लॉजिकल एंड तो भाई आपका बुलियन एंड हो गया. इट विल गिव ए यूर बुलियन एंड. जब दोनों ऑपरेंड आपके सही होंगे तो ही वो चलेगा. यानी यहाँ पर क्या रिजल्ट बन रहा है, तो लेट वी हैव 0 and 0, you should get a 0. If the 0 is there, 1 is there, you will get 0, है ना, क्योंकि ये एंड है. फिर हमारे पास 1 है, फिर 0 है तो you should get 0, बट लास्टली व्हाट 1 है और 1 है तो you will get a 1. तो दिस इज अबाउट द यूर कंडीशन की हाउ दिस ऑपरेटर इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है. तो लेट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल वेरी वेरी स्पेसिफिकली. Now the next, what about this a plus plus and plus plus a? अरे भाई, in this the prefix version, this is the your prefix version में क्या रहेगा, ये prefix version में रहेगा your what, your a plus plus, prefix यानी पहले आना. तो the value a, है ना, value a is incremented at the value and the expression in the new value of what, a, ठीक है ना. तो प्रीफिक्स में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंटेड हो जाएगा और फिर हमें नई वैल्यू मिल जाएगी. बेसिकली इट इज ए फर्स्ट इंक्रीमेंट्स एंड देन असाइन ए वैल्यू टू एक्सप्रेशन. तो ये सबसे पहले हमको इंक्रीमेंट करेगा भाई.
और उसके बाद वैल्यू को असाइन करेगा। बट ऑन द अदर साइड इन द पोस्ट फिक्स में क्या हो रहा है, यू हैव ए प्लस प्लस, तो इन ए प्लस प्लस द वैल्यू ए है ना, दिस इज द वैल्यू ए इज ए इंक्रीमेंटेड, पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, बट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द पोस्ट फिक्स एंड द प्रीफिक्स, है ना। द वैल्यू ऑफ दिस इज द बेसिकली यूर ओरिजिनल वैल्यू। इंक्रीमेंटेड हो तो गया है लेकिन इंक्रीमेंटेड वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, तो लेट इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द प्लस इज इक्वल टू एंड प्लस। तो प्लस इज इक्वल टू इज व्हाट, एक्चुअली सी सपोर्ट शॉर्ट हैंड वेरिएंट ऑफ असाइनमेंट, है ना। दिस इज द न्यू टाइप ऑफ द यूर असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके अंदर में आपको ये दिख रहा है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। दिस कॉल्ड इज ए ऑल्सो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। Now shorthand assignment operator combine one of this arithmetic and bitwise operator with the assignment operator। तो ये arithmetic और आपके bitwise operator में actually होता है। Now for example I have a is equal to a plus 2। अगर ये मेरे पास है तो I can write like this, a plus is equal to 2। तो this is the shorthand of this expression, ठीक है ना। यहाँ पर a इज इक्वल टू a प्लस 2 है और यहाँ पर a प्लस इज इक्वल टू 2 है। तो दिस इज अबाउट यूर व्हाट शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। नाउ लास्ट 2 क्वेश्चन इज देयर, डिफरेंस बिटवीन दिस डबल इज इक्वल टू एंड सिंगल इज इक्वल टू। तो सिंगल इज इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज सिंगल, है ना, इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर लेट वी आर यूजिंग a इज इक्वल टू 10, तो 10 is assigning what, your a। now b is equal to a, we are assigning value of a to b, है ना। for example c is equal to b, so we are assigning the value of b to c। this is like that। now while the double is equal to is equal operator, इक्वल ऑपरेटर क्या है, इट विल बी द कंपेरिजन, कंपेयर करके, इट इज एक्चुअली रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, इफ, है ना, वी विल यूज लाइक दैट, इफ 10 is equal to what, your 20। तो what you will get, suppose your printf, है ना, printf में मैं लिख देता हूँ, you will get a like that printf वेलकम, ठीक है भाई। ये दोनों चीजें सही होंगी तो ही ये वेलकम प्रिंट होगा। बट एज वी आर अंडरस्टैंडिंग 10 इज नॉट इक्वल टू व्हाट, योर 20, 10 is not equal to your 20, तो you will not get this one, ठीक है ना। तो इसके बाद आप else लगा सकते हैं, else you will get a what, you will get a printf in the opposite reverse order में मुझे मिलना चाहिए। तो let e m o c and your what l e w, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द यूर ट्रू साइड एंड दिस इज अबाउट द यूर व्हाट फॉल्स साइड। तो लेट, आई थिंक यू गेटिंग, है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से वाइवा कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, यूर एड्रेस ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर। देखिए एड्रेस ऑपरेटर इज यूज टू गेट ए एड्रेस ऑफ वेरिएबल। For example, I have int a is equal to 10 and this one pointer variable that b, तो b and this, है ना, तो b क्या कर रहा है, एक्चुअली गेटिंग ए एड्रेस ऑफ दिस a क्या है, इट इज ए एक्चुअली वैल्यू 10 है इसकी, लेकिन ये a 10 b में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, एड्रेस ऑफ दिस आ रहा है। नाउ दिस एस्टेरिक ऑपरेटर इज यूज टू पॉइंटर वेरिएबल। भाई ये क्या कर रहा है, ये आपको एग्जैक्टली एड्रेस दे रहा है। कैसे दे रहा है, देखिए इंट a इज इक्वल टू 10, a क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है, देन द पॉइंटर वेरिएबल b है, यहाँ एक c में और यूज कर रहा हूँ। तो देखिए b में अब क्या जा रहा है, b में जा रहा है व्हाट, यूर एड्रेस ऑफ ए जा रहा है, यानी कि यहाँ पर एड्रेस जा रहा है। और c में क्या जा रहा है, व्हाट इन c। अगर कोई भी इस चीज को बता दे तो यू शुड गेट द c। अगर मैं प्रिंट एफ सी करता हूँ यहाँ पे, तो व्हाट आई विल गेट ए आउटपुट ऑफ c। अगर ये आपने बता दिया आज, तो मान के चलिए कि आपका वाइवा क्लियर हो गया। तो लेट, है ना, यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा है, तो यू शुड गेट व्हाट, आपको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, सी की वैल्यू मिलनी चाहिए 10। अगर ये 10 मिलती है तब तो ये आपका वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पर ए क्या है, नॉर्मल वेरिएबल, सी क्या है, नॉर्मल वेरिएबल, तो बी क्या, पॉइंटर वेरिएबल है, तो बी में एड्रेस आ गया है। अब मैं यहाँ से इसको एड्रेस को पॉइंट करा तो यहाँ वैल्यू आनी चाहिए, और मैंने यहाँ प्रिंट किया तो 10 आनी चाहिए।
ओके, तो लेट दिस इज अबाउट द यूर ऑपरेटर। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए। आई विश, है ना, आप बहुत अच्छे से प्रोग्रामर बनिए, अच्छे किसी इंडस्ट्री में आप अच्छे एनालिस्ट बनिए, किसी इंडस्ट्री के आप सीईओ बनिए, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। आई होप ये आपके पास में सब कुछ है। ओनली यूर फंडामेंटल एक्चुअली देर इज सम, है ना, कंफ्यूजन रहता है, उसको आप बार बार पढ़ेंगे तो सब चीज़ हो जाएगी, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, गुड बाय, गुड डे।